Hi everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and once again I am in front of you with yet another video. And today the paper that I am going to discuss is of 2016 paper number 1. And yes, since I am a physics teacher, so I am going to discuss the question paper of physics. So let's start without any delay. Here comes the question number 1. A container is first filled with water and then the entire water is replaced by mercury. Mercury has a density of 13.6 into 10 to the power 3 kilo. It's kilogram, not kilometer. It's kilogram per meter cube. It's kilogram per meter cube. If X is the weight of the water, Y is the weight of the mercury, then for same volume, remember that for same volume, mass is directly proportional to density, and since mass, so is the weight. अगर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्योंकि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, सो Y इज द वेट ऑफ मरकरी, X is the weight of water. So density of mercury is 13.6 10 raised to the power 3 is equals to X is 10 raised to the power 3. So Y can be written as 13.6 X. Third option. Option number 3 is the correct one. Let's move to the next one. Density of water has anomalous behavior because of the triple point, that is a temperature at which water exists in thermal equilibrium, coexist in all the three states in thermal equilibrium, and that is this: maximum at 4 degrees Celsius. Maximum at 4 degrees Celsius. So that is maximum at 4 degrees Celsius. Let's move to the next one. Suppose the force of gravitation between two bodies of equal mass is F. हमने क्या किया, हर एक मास को डबल कर दिया. पहले फोर्स आपके पास थी F is G_m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. जब आपने मास को डबल कर दिया तो ये आ जाएगा G 2m r स्क्वायर. सो जो F डैश आएगा अब आपके पास, इट विल बी 4 times of F. It will be 4 times of F. ठीक है जी. Let's move to the next one. A body has free fall from a height of 20 meter after falling through a distance of 5 meter. From 20 meter, energy is mgh, that is 20 mg. And after falling through 5 meter, it will be 5 mg. So what is the percentage decrease? 20 mg minus 5 mg divided by 20 mg. So this will be how much? 15 by 20, that is 3 by 4. 3 by 4 ही रह गई है पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब लूजेज 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी. लूजेज 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Mass is a particular amount of substance, is the amount of matter present in it and does not vary from place to place. No, mass कभी भी change नहीं होगा. थर्ड wrong है, फर्स्ट और सेकंड सही है. थर्ड is wrong, first and second is correct. Next, two bodies A and B are moving with equal velocity. The mass of B is double that of A. In this context, which one of the following statement is correct? दो बॉडी हैं A और B, दोनों की वेलोसिटी बराबर. Two bodies are out there, A and B, both are having equal velocity. The mass of B is double that of A. In this context, दोनों की वेलोसिटी बराबर है, मास B का ज्यादा है A से. मोमेंटम क्या होता है? P is equals to mv.
यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। वेलोसिटी क्योंकि बराबर है, इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चंस। वेलोसिटी जो है दोनों की बराबर है, इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई। इसलिए इसलिए आपके पास मोमेंटम किसका डबल होगा? बी का मास डबल है तो मोमेंटम बी का ज्यादा होगा ए से। मोमेंटम बी का ज्यादा होगा ए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून। नो, मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के। यस, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन, इट्स मास नंबर इज 12, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? वी नो दैट मास नंबर इज number of protons plus number of not electrons, number of neutrons। अब प्रोटॉन्स में कितने कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। न्यूट्रॉन्स नहीं पता, मास नंबर 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। देयर आर 6 न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, an object is placed at a center of curvature of a concave mirror of focal length 16 if the object is shifted by 8 centimeter। एक concave mirror है, ठीक है, और उसकी फोकल लेंथ ये रही 16। देन एन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहां पर 16 ये, यानी कि टोटल कितना? 32 सेंटीमीटर। टोटल कितना? 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हमने, ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर पे है। अब ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर में, नेचर ऑफ द इमेज वुड बी, इमेज का नेचर बताना, उसके लिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं। चलो, नहीं, उसके लिए थोड़ा सा, ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट। पहली रे गई ऐसे पास हुई, दूसरी रे गई, थोड़ा सा दोबारा से बनाते हैं। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली रे गई ऐसे, यहां पर कुछ इस तरीके से बनेगा आपके पास एक इमेज कुछ यहां पर बनेगी इस तरीके से, थोड़ा सा डायग्राम। व्हेन यू मेक इट प्रॉपर्ली विद द स्केल एंड ऑल, इट विल फॉर्म लाइक दिस। तो अब आपके पास इमेज, पहली बात तो वर्चुअल नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है रियल और मैग्निफाइड और रियल और रिड्यूस, तो दिस विल बी रियल एंड मैग्निफाइड। A pencil is placed upright at a distance of 10 centimeter from convex lens of a focal length 15. The nature of the image will be, convex lens है, convex lens है, ये रहा फोकस। फोकस कितनी दूर है? 15 सेंटीमीटर। यहां रखी है पेंसिल अपराइट, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे image will formed on the same side, so it is virtual, erect and magnified. Virtual, erect and magnified. Which one of the following is a conventional source? Conventional source means non-renewable. If you used it once, you can't use it again. So that is biomass energy. Biomass energy is the conventional source. A lady standing in front of a plane mirror at a distance of 1 meter from it. She walked 60 centimeter toward the mirror. The distance of her image now from herself is. एक प्लेन मिरर है, a lady standing at a distance of 1 meter 100 centimeter. She walks 60 centimeter toward the mirror. 60 सेंटीमीटर मिरर की तरफ वो चल पड़ी है. तो यहां से इधर ऑब्जेक्ट इमेज भी इतनी ही आएगी. अब इमेज का डिस्टेंस भी कितना है? 40 सेंटीमीटर. इमेज का डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर. 40 40 80. आपसे पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हर सेल्फ. खुद से उसकी इमेज का डिस्टेंस यहां वो उस टाइम पे है 40 ये और 40 ये 80 सेंटीमीटर. द ब्राइटनेस ऑफ द स्काई डिपेंड्स ऑन साइज, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन. साइज, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सन से कितना डिस्टेंस है? When a solid is heated, it turns directly into gas. This process, everybody knows, sublimation. Sublimation is the process in which solid directly convert into gas. A glass vessel is filled with water to the rim and a lid fixed to it tightly. Then it is left inside a freezer for hours. What is expected to be happen? Because water will expand. Water will freeze. जब water freeze हो रहा है तो temperature कम हो रहा है. वाटर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, और जब वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वाटर की वॉल्यूम बढ़ती है. एनॉमलस बिहेवियर. इस वजह से द ग्लास वेसल विल ब्रेक एंड बिकॉज वाटर फ्रीजेस टू आइस. अ सिंपल सर्किट कंटेन 12 वोल्ट बैटरी. आपको वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट, आपको रेजिस्टेंस गिवन है 24 ओम. करंट कितना आएगा? 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर. एमीटर जो है वो करंट मेजर करता है. नेक्स्ट, 3 रेजिस्टर विद मैग्नीट्यूड 2, 4, 8 ohm are connected in parallel. The equivalent resistance should be. All the 3 are in parallel, so we will add it like this. इस तरीके से हम इनको ऐड कर लेंगे, और जब हम इसको ऐड करेंगे, when I add all the 3, जब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, see, it is 1/2, 1/4, 1/8. So this will be, LCM will be 16, 8, 2, no, 4 and 2. This is 1/R. That is 1/R. So 1/R is 14/16. R is 16/14. 8/7. 7 ones are 7. 7 ones are 7. 30, 7 4 are 20. 1.14. Not this one, not this one, not this one, this one. आगे बढ़ते हैं. Again, there are 3 resistors, actually 4. 3 of them are connected in series. So 1/2, 1/4, 1/6. LCM will be 12. ये आ जाएगा 6, 3, 2. कितना आ जाएगा? 9. 11/12. This is 1/R. तो R कितना आ जाएगा? 12/11. R कितना आ जाएगा? 12/11. R आ जाएगा 12/11. जब R की वैल्यू 12/11 है, एक सीरीज में है, +8, 100/11.
कितना आ जाएगा आपके पास, 100/11 है तो 9/111, मिक्स्ड फ्रैक्शन 9/111 ये आएगा, 9/111 ये आएगा। चलो 12 की जगह 11 आ जाएगा, 9/111। अ रेसिंग कार एक्सेलरेट ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से है तो u0 है, u0 है तो v हो जाता है 0 + at, t कितना आ जाएगा, u कितना है 50, a कितना है 25, कितना आ गया 2, t is 2 मीटर पर, sorry, this will be 2 सेकेंड। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज ut + ½ at², ये तो पहले से ही 0 है, ये तो पहले से ही 0 है, ½ at² का मतलब 1/2, a कितना है, a हमारे पास कितना आया है, सॉरी ये आपके पास एक्सेलरेशन आया है, नॉट, दिस इज एक्सेलरेशन और ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट इज 2, टाइम कितना है 25 सेकेंड, कैंसिल, आंसर इज 625 मीटर, आंसर इज 625 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। A man weighing 70 kg is coming down in a lift. If the cable of the lift breaks suddenly, the weight of the man becomes 0. Don't forget that it is the condition of weightlessness. ये जो कंडीशन है ये वेटलेसनेस की कंडीशन है, वेट एकदम से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो लिफ्ट नीचे आ रही है, उसका मतलब वेट ज्यादा है, रिएक्शन कम है, नेट फोर्स MA, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी W - MA, विच इज R is mg - MA, तो यहां से आपके पास m of g - A, तो m of g - A 0, तो नॉर्मल रिएक्शन 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो इसलिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। गिवन कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर प्रोड्यूस हीट इक्वल टू 200 जूल। अब देखिए हीट का फॉर्मूला होता है I² RT, H1 अपॉन H2 I1² I2²। H1 कितना है 2000, H1 इज H2 वी डोंट नो, इज इक्वल टू I1 I है, I2 2I का स्क्वायर, तो यहां से H2 कितना आ जाएगा 8000 जूल, 8000 जूल। Impulse on a particle due to force acting on it in a given time interval is equal to change in its momentum, हाँ इज इक्वल टू मोमेंटम, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। Which one of the following statement with regard to expansion of material due to heating is not correct? The very first one. As ice melt, it expand uniformly. No, this is wrong. क्यों wrong क्यों है? क्योंकि ice melt, ice means the solid form of water. जब water को आप heat करोगे तो वॉल्यूम कम होती है 4 डिग्री सेल्सियस तक, इसलिए डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद बढ़ती है। आगे बढ़े। Which one of the following is not a form of store energy? It's the electrical energy. न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी टू डू वर्क, केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बैटरी, केमिकल रिएक्शन, इट इज ओनली द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज नॉट स्टोर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़े। द कार स्टार्ट्स फ्रॉम ओ से लेकर गाड़ी ए तक गई है, देन बी, देन सी at different instant of time during its motion from 0 to C and back to B.
यहां आई है वापस, यहां आई है वापस। अब यहां पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो 25, 60, 60, 65, 70, 75, 80, 85। डिस्टेंस आ गया 85, एक ही ऑप्शन है 85 का। डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो 35, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जाओगे तो 35। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।